got a problem at the moment. In any event, most of your coal-fired plants don't have enough coal stocks to last more than a week. Professor Iyer. And we have rightly discussed this last week, and we said we have only 48 hours of coal in most of the power plants. 48 hours of coal, right. But the solution has to be found. See, while this is the problem, the solution is clear. Solution is not to import of coal. Solution is finding out, now they have one solution, that they are not going to transport coal over long distances. They will send to the nearest power plant coal from the location. So that will double the capacity, move the coal quickly, and some coal capacity will be available within the next 15-20 days. Next 15-20 days. All right. So, okay, fine. So, these are two decisions that you talked about. One, of course, is with regard to non-traditional methods of, energy generation, which is non-hydrocarbon based. Number two, you said Jetapur should start immediately. Anything else? Professor Iyer, please go ahead. Yeah, very, very important. See, you have this Koina hydroelectric project, right? Yes. The Koina hydroelectric project is a 1960 megawatt project and the largest project of the country. Right. But it has been barely operating at 300 to 600 megawatt even in the peak period. Why? Only because the water treaty between Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra has not been settled. Yes. Now, here is a powerful Prime Minister, here is a state of Maharashtra, and here is a state of Andhra which can cooperate. So if they can do 80% of that capacity is back on the grid, that means you can literally produce 1500 megawatts out of that. Right. So we should actually think, and our pet project, you remember, we said we must have a water storage project in between Lonavala and Mumbai. That's right. Because you got the land. You have the land and you have the rainfall. Because that entire water is going waste. It is going directly into the Arabian Sea and nobody can use it. That's what's happening. Right. And that can have low head capacity turbines on those canal heads which can generate electricity. Massive electricity can be generated. I hope the Chief Minister is listening. I hope the Chief Minister is listening. If he's not listening, we'll make him listen. Professor Iyer, we are waiting for you to come back to Mumbai so that you can come in the studio and you can discuss all these ideas right over here. Thank you so much for talking to us. Thank you very much for talking to us. Great pleasure. Professor Iyer, हमेशा की तरह अपने विचार सामने रखते हुए, अपने आविष्कारी और क्रांतिकारी विचार सामने रखते हुए, ये कहते हुए कि ये 1, 2, 3 तरीके हैं जिससे आप अपनी एनर्जी प्रॉब्लम्स पूरी सॉल्व कर सकते हैं. और what is happening? DERC has allowed a tariff hike in Delhi. Now they say there will be no tariff hike. Very shortly, MERC is also going to follow suit. And whereas in South Mumbai, the court has allowed complete convertibility. You can go to Tata Power, or you can have BESS, or you can have Reliance Power. That is not allowed in the suburbs. So which means very clearly, some people are more equal than others. We'll discuss that tomorrow. When we come back over here tomorrow, we're going to discuss that. Not today. Today, we've got to take a break. When we come back after the break, we will talk about the biggest scam in the country. This is the Cooperative Credit Society cum Cooperative Bank scam cum Cooperative Society scam, which is worth lakhs of crores. Actually worth lakhs of crores. And this is not a notional value. और यहाँ पर ये नहीं है कि एक कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने एक नोशनल वैल्यू लगा दी हो कि 1,73,000 करोड़ का लॉस हुआ. यहां लॉस नहीं हुआ. यहां पर ये पैसे असल में गायब हुए. We will talk about that when we come back after the break. We leave you with the headlines. The break will last for a minute. When we come back, we're going to talk about the biggest scam this country has ever seen. Don't go away. We'll be right back. ब्रिस्बेन में पीएम मोदी ने किया बच्चों को संबोधित. बाल दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को किया गया याद. भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती. नेहरू की याद में कांग्रेस द्वारा दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित. मराठा और मुस्लिम आरक्षण पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाया स्टे. पूर्व की चौहान सरकार ने लिया था मराठा मुस्लिम आरक्षण का फैसला. सुनंदा पुष्कर की मौत में आया नया मोड़. अब बाहरी शख्स के हाथ होने की आशंका पर होगी जांच. जिंदा है बगदादी. मौत की अफवाहों के बाद ISIS ने जारी किया आतंकी अबू बकर अल बगदादी का ऑडियो क्लिप.
global advertisers, scaling new heights in outdoor media. Right, welcome back. You're watching me, Rajiv K. Bajaj, on Inside Story on 11 News. That's right. और अब हम बात करेंगे, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, अब हम बात करेंगे सबसे बड़े स्कैम के बारे में। इतना बड़ा स्कैम आज तक कभी ना सुना, ना देखा, और ये असल में हुआ है और हो रहा है। असल में हो रहा है और यहां से असली पैसे जा रहे हैं। एक्चुअल मनी इज गोइंग आउट. It is not a notional value. It is not something which the CAG has said the government has suffered this huge loss. यानी अगर कोल ब्लॉक इतने में बेचा गया होता तो शायद इतने पैसे आ जाते, तो वो लॉस दिखा दिया गया। यहां पर असल में पैसे बांटे गए हैं एंड इट इज वर्थ लैक्स ऑफ करोड़। अगर पिछले 20 साल का हम ब्यौरा लेंगे तो ना जाने कितने लाख करोड़ इस तरीके से बांट दिए गए। उन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे हेडलाइंस देखने के बाद। Let's take a look at the headline first. ब्रिस्बेन में पीएम मोदी ने किया बच्चों को संबोधित। बाल दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को किया गया याद। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती। नेहरू की याद में कांग्रेस द्वारा दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित। मराठा और मुस्लिम आरक्षण पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाया स्टे। पूर्व की चौहान सरकार ने लिया था मराठा मुस्लिम आरक्षण का फैसला। सुनंदा पुष्कर की मौत में आया नया मोड़। अब बाहरी शख्स के हाथ होने की आशंका पर होगी जांच। जिंदा है बगदादी। मौत की अफवाहों के बाद आईएसआईएस ने जारी किया आतंकी अबू बकर अल बगदादी का ऑडियो क्लिप। Right, as we promised, we're going to talk about the biggest scam ever. सबसे बड़ा स्कैम। जी हाँ, और उसी के बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं एक्टिविस्ट एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार एंड ऑफ कोर्स आवर ओल्ड फ्रेंड राजेश मिश्रा। Pradeep, in terms of money, in terms of overall money that you think has gone, मतलब कि पिछले 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में सहकारी सेक्टर से यानी कोऑपरेटिव सेक्टर से जितना पैसा गवाया गया है और उसको एनपीए में कन्वर्ट करके उस बैंक के प्रॉफिट लेकर के ये दिखाया गया है कि वो हमने एनपीए भी क्लियर कर लिया, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी हमने क्लियर कर लिया और बैंक को उसी लेवल पर आप लेकर के आ गए। आपके मुताबिक एज ए रफ कैलकुलेशन, बॉल पार्क फिगर, how much of money do you think is gone? Plus or minus 2 lakh crores. Plus or minus 2 lakh crores. You heard that? Yes, it will be you heard that. That's 2 lakh a huge amount. And this is
basically because lack of transparency and the late decision making by Reserve Bank of India, NABARD and the Ministry of Cooperatives. Cooperatives Minister has got a role to play with cooperative sector in Maharashtra is concerned, और इसमें जो lackadaisical attitude इनके है कि आप अगर apparent fraud के complaints आपके पास आ रहा है तो आप तुरंत administrator appoint करके उस चीज को cleanse करने के आप क्यों नहीं immediate reasoning करते हो? Why do you wait? Why do you have now continuously we feel the beneficiaries of this kind of scam are the people close to and near and dear of the committee. और जो कमिटी है हमने देखा है कि मोस्टली डोमिनेटेड बाय एनसीपी मिनिस्टर्स एंड द कांग्रेस एंड लेटली द बीजेपी एंड द मनसे. नाउ इफ यू हैव पॉलिटिकल लीडर्स totally dominating the cooperative sector, तो आप समझ सकते हो there's very difficult for the government to really act, and this is the late decision making of the government is occurring huge losses to the common man. और जो cooperative movement banking cooperative credit societies है जो farmers के लिए जहाँ तक हो कि farmers का benefit के लिए होता है, farmers हमने देखा कि महाराष्ट्र में are not finding any benefit at all, they are committing suicides, और इस चीज को रोकने की जरूरत है and the government has to take drastic action. इसलिए यही सीएम है जो पहले विरोधी पक्ष में रहा करता था और पूरे करीबन 2-2.5 साल उन्होंने असेंबली को रॉक और स्टॉर्म किया था इसी कहने की. let's talk specifics. Hang on a minute, let's talk specifics. जहां तक ये बैंक्स का सवाल है, आपके मुताबिक जैसे मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो गया जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बात करी है, उसके चेयरमैन प्रवीण दारेकर साहब ये कहते हैं कि वास्तविकता में उनका सम्मान होना चाहिए क्योंकि उन्होंने ना जाने कितने पैसे बैंक के लौटाए हैं. He is actually brought back money, that's what he says. इसके अलावा सीकेबी बैंक हो गया, इसके अलावा सारस्वत बैंक हो गया, कापोल बैंक हो गया और बैंक ऑफ अकोला हो गया. आप ये बताएं कि इन सब बैंकों में, ये सब बैंकों की जो फहरिस्त है, इसमें सबसे ज्यादा गिल्टी कौन सा बैंक है, ये जरा बताएं प्रदीप. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है आज बहुत सारे the entire movement has focused on that. The RBI is investigating it, the NABARD is looking after that, and Ministry of Corporate also is looking, corporation also looking at. अब ये थी कि इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, आप देख रहे हो कि the अजित पवार खुद इसके one of the directors थे, chairman थे, and you got the entire NCP ministers in that particular board, including Pandurang Phunkar of the BJP in this particular board where Maharashtra Cooperative Bank scam is concerned. मगर ये आप accumulation में देखें, you can't take it in isolation. Isolation में न देख के इसको एक totally एक movement की तरफ से देखोगे, जितने cooperative sector credit societies और cooperative banks है that need thorough investigation, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो डिसीजन मेकिंग है, इफ यू फाइंड द रियल बेनिफिशियरीज ऑफ दिस. अब एक शुगर फैक्ट्रीज, शुगर मिल्स को, शुगर कारखाने को फाइनेंस करते हैं, कारखाने लॉस में जाता है, कारखाने टोटली अपने आप को बंद करता है, एंड वी फाइंड द स्टेट इज गारंटीइंग इट. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर सीम्स टू बी अ टोटल जिस प्रकार से कोलैबोरेशन है इस फ्रॉड के लिए बिटवीन दिस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव बैंक्स, द शुगर फैक्ट्री, शुगर कारखाना, पॉलिटिकल लीडर्स. आफ्टर ऑल एनपीए डिक्लेयर करके और उस चीज को बंद करके शुगर कारखाने गोइंग टू लिक्विडेशन, पैसे भरने को नहीं है, स्टेट का गारंटी है, स्टेट पुट्स ऑफ इट हैंड बिकॉज़ इट नोस द अपैरेंट फ्रॉड बीइंग प्लेड अपॉन द पीपल. पीपल आर लूजिंग मनी. जो गरीब से गरीब लोग हैं जो छोटे कोऑपरेटिव मूवमेंट में जुड़ते हैं वो टोटल लॉस में है. Yeah, that's the whole point. Now I'm coming to that. The fact remains that as far as all these things are concerned, जहां तक इन सब चीजों का सवाल है, which is absolutely true, लेकिन यहां पर राजेश मिश्रा जी मैं चाहूंगा कि आप जरा यहां पर आएं और आप ये बताएं कि जहां तक कि आपका प्रश्न है, जिस प्रकार आपने मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के आप लोगों ने एक अभियान चलाया, आप ही के सामने जनाब प्रवीण दारेकर साहब ने फोन पर हमें बताया कि किस प्रकार जहां पर पैसे वापस लाने की उम्मीद तक नहीं थी, वो असल में जैसे भी हो, इंस्टॉलमेंट पे हो, जैसे मर्जी हो, पैसे वापस लेकर के आए. तो वहां पर आपको क्या ऑब्जेक्शन है, आप ये बताएं. सर वो पैसे लाए बोल रहे हैं लेकिन पैसे तो आए नहीं, और उसका ब्याज का क्या? हाँ 120-130 करोड़ रुपए का ब्याज भी 120-130 करोड़ रुपए होता है 15 साल में. लेकिन देखिए जहां तक 120-130 करोड़ के ब्याज का प्रश्न है, जहां पर प्रिंसिपल अमाउंट भी आने वाला नहीं था, यहां पर कुछ तो आ रहा है. लेकिन सर दिया भी तो उन्होंने ही था, और उन्होंने दिया है और गलत तरीके से दिया है. लेकिन वो कहते हैं कि उस वक्त, लेकिन वो कहते हैं कि उस वक्त वो चेयरमैन नहीं थे. सर 2003 में दिया गया, उस समय वो डायरेक्टर थे, और वही लोग तो कार्टेल बना के चल रहे हैं. वो 5 साल डायरेक्टर जो तब थे वही आज भी है. What we are really looking at is this. What we are really looking at, Pradeep, as far as we are concerned, what we are really looking at is an old boys club, right? This is not just crony capitalism. This is crony cooperative conspiracy to cheat. That's what we are looking at. Exactly, sir. This has to be, it seems to be, sometimes seems to be a state organized crime.
बिकॉज स्टेट शुगर गारंटी, जो शुगर फैक्ट्रीज को लोन देने में स्टेट इज गारंटिंग इट, और शुगर फैक्ट्रीज इमीडिएटली आफ्टर द लोन कितने शुगर के कारखाने बंद हो गए अचानक, ये पैसे गए, स्टेट गारंटी करता है और स्टेट फिर पैसे वापस नहीं देता है, द मैटर इज गोइंग। जितने कोऑपरेटिव बैंक्स के हमको ये देखना पड़ेगा कि ऐसे टर्मिनली इल कोऑपरेटिव सेक्टर शुगर कारखाना, इसको फाइनेंस करने पर स्टेट ने गारंटी लिया है और ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स को पैसे नहीं मिला है, मैटर पेंडिंग इन इट। दिस विल बी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जो आपने कहा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, दिस इज नथिंग लेस देन एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम व्हिच नीड्स अ डीप इन्वेस्टिगेशन अनलेस मैसिव अरेस्ट करेंगे पॉलिटिशियंस को। Over here I can see the names of so many banks. जहां तक बैंकों का सवाल है, सीकेबी बैंक हो गया, कपोल बैंक हो गया, बैंक ऑफ अकोला हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, नॉट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आई एम सो सॉरी, महाराष्ट्र, माय ड्यू अपॉलॉजीज, नॉट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। वहां पर अजीत दादा पवार खुद इन्वॉल्व हैं। आज तक अजीत दादा पवार की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? प्रदीप बताएं। So that's what I'm saying. It seems to be an organized crime. It's an organized crime where every cooperative movement के, every cooperative credit society हो या every cooperative bank के आप board of directors में देखेंगे, totally politicians of the ruling party. जो नेता है ruling party के, जो अब तक 15-20 साल maximum जो कांग्रेस और एनसीपी के रहा है, they have been dominating the entire sector where this cooperative banks and cooperative credit societies are concerned. And there's a nexus, a major nexus between the people, corridors of power, people in the corridors of power, the people, the नेता जो इसे banks और cooperative movements को head करते हैं, एक बहुत organized route की तरफ से चलता है. The beneficiaries are only these people. Major beneficiaries ये है near and dear of these people, और जो ultimately जिसको बेनिफिट करना चाहिए, जो शेतकरी है, काम का छोटे छोटे लोग वर्ग के लोग हैं, you had 4 farmers suicides even yesterday, and right? This is going on, thousands and thousands of farmers राजेश मिश्रा जी, आप बताएं। no recourse। जहां तक केस का सवाल है, जो केस आप लोगों ने फाइल किया है, उस केस का स्टेटस क्या है? अभी तक कहां तक पहुंचा है? तो जहां से शुरू हुआ था अभी वहीं पे है, उसमें कुछ काम आगे नहीं बढ़ रहा है, और नहीं बढ़ने का रीजन है कि पॉलिटिकल प्रेशर है उन लोगों के ऊपर, और एक एजेंसियां दूसरे एजेंसी के ऊपर डालती हैं। अभी जो रजिस्ट्रार ने चेक करके रिपोर्ट बनाया, वो बोलता है हमको एक्शन लेने का पावर नहीं है, फिर आरबीआई बोलती है हम नाबार्ड को दे रहे हैं। अभी नाबार्ड किसको देने वाला है कुछ पता नहीं, मतलब काम किसी लेवल पे आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जहां का तहां ही पड़ा हुआ है। Pradeep, now this of course is with regard to the cooperative sector. Now let's also talk about something else. In terms of the cooperative sector, that is one, but also the series of new exchanges which had come up. If you remember the MCX exchange, if you remember the illegal exchange that was being run from Kerala, and now you have the NSCL. In the NSCL scam, nothing much seems to have happened there either. Pradeep. सर, NSCL स्कैम में भी आप देखोगे तो आज जो बैंक के डायरेक्टर्स जो स्टैंड ले रहे हैं, वही स्टैंड NSCL के जो चेयरमैन है जिग्नेश शाह ने लिया था कि नीचे लेवल में जो फ्रॉड हो रहा है, इसमें टॉप मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं। मगर आज हम देख रहे हैं पूरे कमेटी के डायरेक्टर्स सब अरेस्ट हो चुके हैं, इंक्लूडिंग द चेयरमैन ऑफ NSCL. Though this was a stand taken by him, and this is a stand even taken by this cooperative sector, credit cooperative societies, cooperative banks, के नीचे जो स्तर पे जो लेवल पे जो चीटिंग और फ्रॉड हो रहा है, उसमें हमारा कोई दखलंदाजी नहीं है. We don't know about it, but that is absolutely wrong. Everybody is involved. Everybody is involved. जिस प्रकार से No, but society as far as the NSCL scam is concerned, no, hang on a minute. As far as the so-called NSCL scam is concerned, everybody seems to have gotten away. Mr. Jignesh Shah is all over the place. He's not behind bars, as far as I know. And most of the rest of the people, almost 90% of the people who were involved in the NSCL so-called scam, they seem to be, doing quite okay. There doesn't seem to be any problem at all. You compare this with what has happened to the so-called Sarada chit fund scam, and you also compare this to what has happened with regard to Sahara. The Sahara chairman, the Honorable Subrata Roy, that is Sara Shri, he has been in jail now for the last 9 months. Sarada scam, most of the people over there are in jail. What about NSCL? Pradeep. सर, NSCL की आप पूरे डिफॉल्टर्स का लिस्ट देखोगे, द पीपल हु हैव डिफॉल्टेड 400 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 5600 करोड़ को टोटल जो उन्होंने अमाउंट बोला है, ये बहुत सारे कंपनी, दे आर नॉट इवन कंपनीज प्रोप्राइटरी कंसर्न्स, प्रोप्राइटरीशिप जो है वो लोगों ने इसमें आके करीबन 400 करोड़ का गबन जिस प्रकार से किया. एंड इफ NSCL, but could you explain what is the method? Let's talk about methodology. You had an account of the NSCL, you had certain goods which did not exist, and people used to pick up that money as if it was their own.
एग्जैक्टली फॉल्स, there's no warehouses, मोस्टली आप देखोगे warehouses था ही नहीं, और warehouses में जो दिखाया है उस warehouses में जैसे वेस्ट लोटस रिफाइनरी इज कंसर्न, जो स्टॉक उन्होंने गारंटी प्लेज किया था, दैट वाज 100 टाइम्स द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेयरहाउस। तो इस प्रकार से But in terms of Lotus Refinery, the gentleman concerned is actually suing NSCL because he says that he has suffered a loss of 500 crores, as far as I know. That's what seems to be happening. Definitely, sir. In other cases, people have been told, और ये स्टेटमेंट है लोगों की एसीबी के सामने, एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने और ईओडब्ल्यू के सामने, ये स्टेटमेंट है कि भाई एनएससीएल के डायरेक्टर्स ने उनको आकर के बोला भाई ये अकाउंट है, इसमें 600 करोड़ पड़े हैं, उसमें धीरे धीरे करके आप 100 करोड़ निकालिए और इतने आप बांट दीजिए और इस रेशो में ये पैसे बटेंगे। हर एक को मालूम है कि उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, किस पॉलिटिशियन की जेब में कितना क्या गया, कहां पर क्या गया, कौन सी कंपनी को कितना मुनाफा हुआ, हर एक को मालूम है। एंड वी आर टॉकिंग एट द मोमेंट अबाउट द एनएससीएल स्कैम। प्रदीप, एग्जैक्टली सर, वेयर हाउसेस में गुड्स नहीं थे, वो गुड्स उन्होंने प्लेज किया, उस पे लोग बोरो कर रहे थे, उस पे ट्रेड कर रहे थे, आपस में बांट कर रहे थे। अल्टीमेटली जब गुड्स लेने वाली बात थी तो गुड्स था ही नहीं, तो दिस स्कैम हैड टू ब्रेक, बट एवरीबॉडी मेड मिलियंस एंड बिलियंस। बट प्रदीप, over here, let me correct you just a little bit. ये बात बिल्कुल सही है कि जहां तक के गुड्स का सवाल है, जिसके ऊपर जिनको प्लेज करके बोरो किया गया, उस बोरोइंग के ऊपर और बोरो किया गया और उस बोरोइंग पर और बोरो किया गया, which means you created strange and weird financial products on things which did not exist. Didn't exist at all. It never existed. And this entire fraud took place with total connivance of the top management of NSCL, and definitely they landed. So where is Mr. Jignesh Shah now? He's out on bail. I mean, that's a tragedy where the people themselves have gone to Supreme Court against the bail order, saying that you can't free this man. He has not given us the money. And after all, FTIL, NSCL का जो merger है, they believe that the assets of FTIL will be sold to give off the liabilities of NSCL to the people, the 5,600 crores जो पैसे हैं. But the very fact that the man came out on bail, the investors can't take it. And now contrast this with Alan Sanford and Bernie Madoff. They're still in jail. They're still in jail. They've been imprisoned for 950 odd years each. मतलब 950 साल तक की एक को सजा मिली है, एक को 450 साल की और एक को 900 साल की। ये अमेरिका है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जहां पर फाइनेंशियल फ्रॉड बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाता। चाइना में अगर आप फाइनेंशियल फ्रॉड में पकड़े जाते हैं, यू फेस अ फायरिंग स्क्वाड, आपको डेथ सेंटेंस मिलता है, मृत्यु दंड मिलता है। जापान में फाइनेंशियल फ्रॉड की सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट है, आजीवन कारावास है। हिंदुस्तान में अगर आप फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं तो आप बेल पे बाहर आते हैं और अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे जिग्नेश शाह साहब ने शुरू किया है। प्रदीप सर, 22 डिफॉल्टर्स का लिस्ट देखोगे आप, सिर्फ लोटस के बारे में देखोगे, जो इलीगल वेल्थ वहां से एक्यूमुलेट किया था फ्रॉडुलेंट तरीके से, गरीब आई वोंट से गरीब इन्वेस्टर्स, बट जेन्युइनली इन्वेस्टर्स हु कुड पे मनी। आई मीन दे ऑल, ठीक है, एचएनआई भी है, बट दैट्स मनी एंड दैट्स फ्रॉड। और इस फ्रॉड के पैसे को किस प्रकार से उपयोग करना, कोई फिल्म इंडस्ट्री में पैसे डाल रहा है, कोई कहाँ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स कर रहा है, where there was no returns at all, and ultimately everybody has lost money, and the investors have lost money. That entire fraud was all right. This was a because as we always talk about, the greatest incitement to crime is the hope of escaping punishment. But and Jignesh Shah is out on bail. Jignesh Shah is out on bail. I tell you Investors what, have not got their money. I tell you what, as far as people are concerned, people are not so concerned about NSCL at the moment. I tell you why, because most of the investors in NSCL were very moneyed people, and if moneyed people lose a little bit of money, everybody gets vicarious pleasure into thinking, all right, serve you right. You earned this money illegally, you've lost it illegally, serve you right, may you stew in your own juice. But as far as the cooperative movement is concerned, which we were talking about, sorry, we just left you out, Mr. Rajesh Mishra, the fact remains as far as the cooperative movement is concerned, जिस तरीके से अभी आपने कहा, जहां तक सहकारी आंदोलन का प्रश्न है, वहां पर जब गरीब किसान आत्महत्या करता है, जब गरीब किसान कोऑपरेटिव बैंक में ना जाकर के साहूकार के पास जाता है अपने पैसे लेने के लिए, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हम सब लोगों के सामने आता है कि पिछले 20 सालों से 1-1.5-2 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि कोऑपरेटिव मूवमेंट में इतनी ज्यादा करप्शन है। राजेश मिश्रा जी, आप बताएं, आखिरकार केस आपने किया 6 महीने पहले या 10 महीने पहले, और आज तक जैसा आप बता रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, उसके बारे में जरा डिस्क्रिप्शन दें, उसका विवरण दें, हमारे दर्शकों को बताएं। सर, उसमें कुछ आगे कोई कार्रवाई नहीं बढ़ी। पूरा रिपोर्ट जो सबसे पहले रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट ने उसको चेक किया, रजिस्ट्रार ने, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ने, उन्होंने रिपोर्ट लगाया, पूरा उसका सब डिटेल है अपने पास, पूरी उसकी फाइल है। वो फाइल देखने के बाद में
कंप्लेन गया कि ये आरबीआई के पास जाना चाहिए, आरबीआई ने बोला नाबार्ड को करना है। अल्टीमेटली फिर ईओडब्ल्यू को केस दिया मुंबई बैंक ने। मुंबई बैंक में ईओडब्ल्यू के अंदर जाने के बाद वहाँ से आज तक कोई रिप्लाई ही नहीं आ रही है। वो कितना क्या कर रहे हैं, कम से कम 300-400 फ्रॉड अकाउंट पकड़े गए हैं, एटलीस्ट मोर देन 500 अकाउंट है जो सेविंग अकाउंट फ्रॉड खोले गए हैं, जिसमें लोग एक्सपायर हैं, जिंदा नहीं है, बच्चों के नाम पे अकाउंट खुले हैं और उसमें लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है एक एक अकाउंट में। वो सबका भी आज तक रिपोर्ट नहीं आई, उसके पीछे कौन था, कैसे कैसे हुआ है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और यही चीज तकरीबन बाकी हर बैंक में भी देखी गई है, जिन जिन का नाम हम लोगों ने आज लिया है। प्रदीप आप बताएं कि जो बाकी बैंकों का सवाल है, अब चलिए देखिए, जहां तक इस चीज का सवाल है, चलिए रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो बाकी बैंक्स जो हैं वहां पर रिपोर्ट आ चुकी है। जो मेन अक्यूज्ड हैं, साफ तौर पर यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि इन लोगों ने इतने करोड़ों का गबन किया है और वहां पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। प्रदीप एग्जैक्टली सर, जहां पर सरकार को स्ट्रिक्टली एक्शन लेना है, सरकार इज टेकिंग एक्शन। अभी जैसे 156(3) के बहुत सारे मैटर्स जो डायरेक्टर्स के खिलाफ है, द पुलिस आर टेकिंग द वेरी स्लेम एक्सक्यूजेस कि हमारे पास वो एक्सपर्टाइज नहीं है, हमारे पास वो आप ऑडिटर लाइए, हमारे पास ये चल रहा है। तो जिस प्रकार से एक चीज को सर्कमवेंट करना, उस पर इंटरेस्ट ना लेना, देयर इज डेफिनेटली वेस्टेड इंटरेस्ट, बट द क्वांटिटी एज यू सेड द मोस्ट एक बहुत अपैलिंग सिचुएशन ये है कि जितने क्राइम्स, इकोनॉमिक क्राइम्स और कॉर्पोरेटिव सेक्टर में जिस प्रकार से इकोनॉमिक क्राइम्स हो रहा है, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, बिकॉज 156(3) आर टॉकिंग अबाउट वन बैंक हैविंग वेरियस, पूरे मुंबई में कितने पुलिस स्टेशन में उस बैंक के खिलाफ, कॉर्पोरेटिव बैंक के खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड है, एक्शन नहीं हो रहा है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग आज के तारीख में स्पेशली मुंबई के इतने ओवरबर्डन्ड है केसेस में। I believe now listen to me. When we did the city limousine case, at that time, you had pointed it out that the EOW has exactly 12 officers. Has exactly 12 people, not 12 officers, exactly 12 people. सिर्फ 12 लोग इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को उस वक्त चला रहे थे। अभी कितने मुझे मालूम नहीं है, बाय टुमारो वील हैव द फिगर फॉर यू, बट आई डोंट थिंक इट कुड बी वेरी मच। मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा होगा। और जो राजेश मिश्रा जी ने अभी कहा कि भाई हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, वहां पर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग वाले झूठ नहीं बोल रहे हैं, असल में उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है। Rightfully speaking, the government should have provided them with a whole, army of chartered accountants, cost accountants, financial analysts, and other people, who are experts in financial frauds and discovering financial frauds. But that has not happened. But this is आप देखो कि complicated, इधर कहां पर complicated? आप कह रहे कि 500 फर्जी अकाउंट है, उसमें कौन से आपको टेक्निकल नो और इसमें कौन से कॉम्प्लिकेशन, लीगल या इकोनॉमिक स्किल्स चाहिए इसको फाइंड आउट करने के लिए? मरे हुए लोगों के नाम पे अकाउंट किया है, जो है ही नहीं, एग्जिस्टिंग जो लोग ही नहीं है, बेनामी अकाउंट्स खोलकर ऐसे 500 अकाउंट सामने आया है। उस चीज को करके डायरेक्टर तक पहुंचना, जो टॉप लेवल के लोग हैं वहां तक पहुंचना, कौन से इकोनॉमिक स्किल्स की जरूरत है? बिकॉज दैट इज प्योरली but some arrests have taken place, but in this particular case some arrests have genuinely taken place of very lower level officers and of the people who had committed fraud or sought to commit fraud, as far as this bank is concerned. But as far as the Maharashtra Cooperative Bank is concerned, जहां पर अजीत दादा पवार खुद इन्वॉल्व हैं, 500 करोड़ का गबन हुआ है वहां पर और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जिस प्रकार अभी देवेंद्र फडणवीस सरकार अंडर प्रेशर है, दबाव में है, और जिस प्रकार वॉइस वोट द्वारा, जो कि अभी चीफ जस्टिस सावंत साहब ने इसी शो में साफ तौर पर कहा कि वो इलीगल है, मुझे नहीं लगता कि अजीत दादा पवार के खिलाफ कोई एक्शन होगा। प्रदीप सर, हम जो जर्नलिस्ट मजाक में कर रहे थे कि जब तक छगन भुजबल रामटेक छोड़ेंगे नहीं, तब तक इंडिकेशन है कि एनसीपी यही चाहता कि सरकार स्थिर नहीं है, या हमको एनसीपी को और बीजेपी को जुड़ना पड़ेगा। Right. That is, I mean, though in a jest, but that is absolutely what has transpired. The BJP took didn't ask for the division. Nobody asked for the division, and NCP never asked for it. BJP won't ask for it. Let's be very clear. Why should the BJP Why ask should the for it? BJP They ask have moved it? the vote of confidence. Why Yes. should they ask for the dividend? So the bigger question is, आज तो क्या बीजेपी सरकार में by default भी रह गया, तो क्या जितने कॉर्पोरेटिव सेक्टर के एनसीपी लीडर्स के इरिगेशन स्कैम है, कॉर्पोरेटिव बैंक स्कैम है, कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज में जो एनसीपी के टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व है, क्या एक्शन इनके खिलाफ होगा? Now this is also I don't think has so. to come I don't before the think it's people. going to happen. ये चीज Not happening. देवेंद्र फडणवीस 2.5 साल 3 साल जो असेंबली में हंगामा कर दिया था कि कॉर्पोरेटिव सेक्टर में इतना बड़ा फ्रॉड, एक चीज एडुकेटेड तरीके से, बहुत स्टडी तरीके से उन्होंने निकाला था। आज it's a testing time for him. Will he take action? Will he What take is against first Ajit Pawar? action itself? Chhagan Bhujbal, I'm so sorry. There are Sunil questions. Tadkare. But Pradeep, there have been questions raised on the Chief Minister's very first actions. His very vote of confidence is being called into question. ये कहा जा रहा है कि जिस आदमी ने सबसे ज्यादा
फ्रॉड्स के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। The vote of confidence itself is being called fraudulent. Mr. Devendra Fadnavis has a lot to answer for. राजेश मिश्रा जी, आप बताएं, क्या आपको उम्मीद है कि आपकी कंप्लेंट के ऊपर कोई एक्शन होगा? जो भी बताएं सर, ये बीजेपी की सरकार अगर उनकी बैसाखी पे टिकी रहेगी, एनसीपी के बैसाखी पे, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट टोटली उनके अंडर में चल रहा था। तो इसलिए बहुत मुश्किल है, लगता है कि उसमें कुछ होगा। फिर भी But as far as we are concerned, I tell you what, as far as we are concerned, we promise we will continue with this. We will not stop. We will not give up. We will continue with this, and we shall continue to bring you all the dirt on all the dirty tricks and all the dirty politics and all the dirty money which has been earned by all these dirty people. That's too much of dirty, but we will bring it to you. That's our job, to dig up the dirt and present it right there in front of you. Pradeep, thank you so much. Mr. Mishra, thank you so much for coming. And as far as we are concerned, we'll of course be back over here tomorrow. जी हाँ, हम लोग होंगे यहीं पर कल, और कल भी हम बात करेंगे NSCL के बारे में, बात करेंगे पावर सेक्टर के बारे में, बात करेंगे क्या अब एक नई योजना बनाई जा रही है. This is the inside story. Is there a new conspiracy to increase the tariff over here in Mumbai and in Maharashtra? और दूसरी चीज, जब कोर्ट ने टोटल ट्रांसफरेंस का ऑर्डर दे दिया है कि आप टाटा पावर लीजिए, रिलायंस पावर लीजिए, या बेस्ट से आप बिजली लीजिए साउथ मुंबई में, तो नॉर्थ मुंबई का क्या दोष है? वही ऑर्डर सबर्ब्स में क्यों अप्लाई नहीं होता, क्यों लागू नहीं होता? We'll talk about that when we come back tomorrow. In the meantime, you keep writing into us on insidestory@lemonnews.com. My name is Rajiv K. Bajaj. I'll be back over here tomorrow at the same time. You watch the headlines. See you tomorrow. Till then, bye-bye. ब्रिस्बेन में पीएम मोदी ने किया बच्चों को संबोधित। बाल दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को किया गया याद। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती, नेहरू की याद में कांग्रेस द्वारा दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित। मराठा और मुस्लिम आरक्षण पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाया स्टे। पूर्व की चौहान सरकार ने लिया था मराठा मुस्लिम आरक्षण का फैसला। सुनंदा पुष्कर की मौत में आया नया मोड़। अब बाहरी शख्स के हाथ होने की आशंका पर होगी जांच। जिंदा है बगदादी। मौत की अफवाहों के बाद आईएसआईएस ने जारी किया आतंकी अबू बकर अल बगदादी का ऑडियो क्लिप। वेलकम टू लेमन होम टेली फ्रेंड्स। मैं हूं सुधा सिंह और मैं आपके लिए लेकर आई हूं बॉलीवुड.tv की कुछ चटपटी खबरें और गॉसिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सफर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज है चिल्ड्रंस डे, तो मैं बिल्कुल आज हम आप लोगों को ये दिखाने वाले हैं फैमिली अंताक्षरी, जहां पर हम आपको सीधे ले चलेंगे मंत्रा, सुगंधा और साथ ही साथ अन्नू कपूर के साथ बच्चों ने किस तरह से गाने गाकर मस्ती मचाई। चलिए दिखाते हैं आपको।